Hello students, so today we will be taking up our lecture number 8 of group 15, that is the nitrogen family. In our previous lecture we were discussing about the reaction of nitric acid with metals which are more electropositive than hydrogen. There we discussed a lot of reactions and I told you, but remember that there are certain metals, for example iron, aluminium, chromium, cobalt and nickel. They when allowed to react with your concentrated nitric acid, they becomes passive with concentrated HNO3. These metals become passive. Passive means they will react temporarily for a moment and after that there will be no reaction. For example, अगर हम आयरन की रिएक्शन कराएं कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, तो आयरन के सरफेस पे एक फेरोसोफेरिक ऑक्साइड, दैट इज मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, इसकी एक स्मॉल कोटिंग सी बन जाएगी एंड आफ्टर दैट योर रिएक्शन विल स्टॉप. बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम एल्युमिनियम की बात करेंगे तो एल्युमिनियम के ऊपर Al2O3 इसकी एक हार्ड लेयर बन जाती है एंड आफ्टर दैट द मेटल डज नॉट रिएक्ट एट ऑल. दैट इज व्हाई वी यूज एल्युमिनियम कंटेनर फॉर ट्रांसपोर्टिंग योर कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड. सो देर आर अदर रिएक्शंस आल्सो. Mainly we have discussed this, each and every reaction we can't write it over here. The next topic of this concentrated and that is nitric acid is reaction of nitric acid या chemical reaction of nitric acid is reaction with metals which are less electropositive than hydrogen. ऐसे सभी मेटल्स जो हाइड्रोजन से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं ऐसी सभी मेटल्स जिनकी E0 रिडक्शन दैट इज पॉजिटिव. E0 रिडक्शन क्या है? जिनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है पॉजिटिव है. ऐसी सभी मेटल्स के साथ हम रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे. जब भी आपका नाइट्रिक एसिड इन मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा, इट विल फर्स्ट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. फर्स्ट इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जो आपका नाइट्रिक एसिड होगा दैट विल dissociate to give reduction product of HNO3. Reduction product of HNO3 will be obtained, plus you will get water, plus you will get nascent oxygen, and then you will be getting the nascent oxygen. In the second step, this is the decomposition of HNO3. This reduction product, as I told you earlier also, that will depend upon what is the concentration of nitric acid and what is the temperature of the reaction. उस पर डिपेंड करेगा. और वहाँ बताया था concentrated nitric acid में it is generally NO2 and in case of dilute nitric acid it is NO which will be produced. Same thing will happen over here. In the second step, your metal will then combine with the nascent oxygen and it will be giving you metal oxide. Now as you know that the oxides of metals are basic in nature, so your metal oxide so formed will react with nitric acid HNO3 to give you metal nitrate plus the water. Metal nitrate plus water, you will get it. So the first two steps of this reaction will be these two steps. They are constitute a redox reaction. यहाँ पे आपकी एक redox reaction हो रही है.
where this reaction is an acid base reaction. So दो reactions होती हैं इसमें. First one is a redox reaction in which oxidation and reduction will take place, and the second reaction is your that is acid base reaction. So now let us discuss some of the reaction. Of course I will not be quoting all the reactions over here. Some of the important reactions I am taking up here. The first reaction which I am taking is reaction with copper. First reaction is reaction with copper. जब आपका नाइट्रिक एसिड कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा, then it will be reacting in two different steps, that is either with dilute or concentrated nitric acid. So first I will be taking up the reaction with concentrated HNO3. If you take up the reaction with concentrated HNO3, you will get water plus NO2, it will be 2NO2, plus you will be getting the nascent oxygen. Copper will then combine with nascent oxygen, it will give you copper oxide. In the third step, your copper oxide will react with again 2 molecules of HNO3, it will give you copper nitrate, that is cupric nitrate plus water. Add up all these three reactions, ये कट जाएगा आपका, इधर से ये कट जाएगा. Your reaction will become Cu plus 4 HNO3, that is concentrated HNO3. You will get cupric nitrate CONO3 whole twice plus 2NO2 plus 2H2O. This is the reaction which will be taking place with the copper, and the concentration of nitric acid is high, that is concentrated nitric acid is used. अगर हम ये concentrated nitric acid के साथ था, अगर हम dilute nitric acid के साथ यूज करेंगे, then your product, reduction product will change and it will be NO. You will be getting 2NO over here plus 2NO, and you will be getting 3 nascent oxygen. अब यहाँ पे आगे वाली दोनों रिएक्शनें सेम हैं, तो इस रिएक्शन को आप 3 से गुना करेंगे, इस रिएक्शन को भी 3 से गुना करेंगे, so that your nascent oxygen and nascent oxygen will cancel out, cupric oxide will cancel out with cupric oxide, and your net reaction will become Cu plus 3Cu plus 6 hydrogen nitric acid is this, and 2 nitric acid is this, plus 8 HNO3, that will be dilute HNO3. It will be giving you 3 CuNO3 whole twice plus 2NO, plus you will get 4 water molecules. So this will be the reaction of cupric acid, copper with nitric acid. Remember here that other metals which are less electropositive than hydrogen, like your mercury, silver, etc., they also react in a very similar fashion. बिल्कुल इसी तरीके से आपका मर्करी और सिल्वर रिएक्ट करेंगे. हैवियर मेटल्स जो हैं, they will be reacting in a similar way. You can write down the reactions with them also. I am not writing those reactions because they exactly react in a similar way like that of copper. Now we are left with one more reaction with metal. तीसरे टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं मेटल की, वो है हमारी रिएक्शन विद नोबल मेटल्स. रिएक्शन विद noble metals like your gold, platinum, ruhedium, etc. तो ये जितनी भी मेटल हैं, they does not react with even the concentrated nitric acid, but remember that
योर गोल्ड एंड प्लेटिनम दे रिएक्ट विद एक्वारेजिया, दे रिएक्ट विद एक्वारेजिया। एक्वारेजिया आप जानते हैं क्या होता है। एक्वारेजिया जो है इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ HCl एंड नाइट्रिक एसिड इन द रेशो 3:1, मतलब 25% आपका उसमें HNO3 होगा और 75% HCl होगा। उसके साथ ज़रूर ये रिएक्ट करती हैं क्योंकि उसके अंदर क्या होता है आपका HNO3 जो है दैट फर्स्ट रिएक्ट विद HCl, इट विल गिव यू NOCl प्लस इट विल बी गिविंग यू वाटर प्लस इट विल गिव यू नेसेंट क्लोरीन। साथ में क्या देगा ये आपको नेसेंट क्लोरीन देगा। 3 HCl लगेंगे आपके, 3 और 1 4, 2 वाटर, ऑक्सीजन 2 और 1 3, और आपकी क्लोरीन बच गई, 1 क्लोरीन यहाँ चली गई तो 2 नेसेंट क्लोरीन बच गई। नाउ दिस नेसेंट क्लोरीन इज ए वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर इसको गोल्ड के साथ आप रिएक्ट कराओगे देन इट विल रिएक्ट विद गोल्ड टू गिव यू ऑरिक क्लोराइड, it will give you auric chloride. This auric chloride will then dissolve in HCl to give you chloroauric acid, HgAuCl4. This will be the chloroauric acid. In a very similar way, there will be a reaction with platinum metal. Platinum will react with Cl. It will give you platinum chloride. That platinum chloride will then combine with 2 molecules of HCl to give chloroplatinic acid, H2PeTCl4 बन जाएगा। So प्योर HNO3 के साथ रिएक्शन नहीं होती, लेकिन ए मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3 विच इज कॉल्ड एक्वारेजिया, उसके साथ आपकी मेटल्स की रिएक्शन होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग यूजेज ऑफ नाइट्रिक एसिड, यूजेज ऑफ HNO3। HNO3 के बहुत से इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल यूज हैं, लैब में भी यूज होता है ये। तो जो मेन यूजेज है वो बता देता हूँ। एक तो ये अमोनियम नाइट्रेट बनाने के काम आता है, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, इसके मैन्युफैक्चर में काम आता है ये। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय लेड चैम्बर प्रोसेस, उसके अंदर भी हम HNO3 का यूज करते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग एक्सप्लोसिव्स, मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन लेड चैम्बर प्रोसेस, in lead chamber process, and manufacture of explosives, एक्सप्लोसिव्स के बनाने में काम आता है ये। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें TNT, दैट इज ट्राई नाइट्रोटोलिन, दिस TNT इज दिस कंपाउंड, दिस इज योर TNT। अगर इसका IUPAC नाम करें तो ये आएगा 2,3,5 ट्राई नाइट्रोटोलिन। सिमिलरली इट इज आल्सो यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड के बनाने के काम में आता है। योर पिक्रिक एसिड इज दिस कंपाउंड OH NO2 NO2 NO2। ये ध्यान रखना है कि नाइट्रिक एसिड थोड़ा सा कोरेसिव है, अगर ये स्किन पे पड़ जाए तो ये हमारे स्किन के प्रोटीन्स को ऑक्सीडाइज कर देता है कंपाउंड्स में, जेंथोप्रोटीन्स में, और एक पीले से रंग का निशान बन जाएगा आपके स्किन के ऊपर। तो ये ध्यान रखना है। दिस इज अबाउट द नाइट्रिक एसिड। वी फिनिश ओवर हेयर विद नाइट्रिक एसिड। वन थिंग लेफ्ट इज दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। अगर हम नाइट्रिक एसिड के स्ट्रक्चर की बात करें देन
it is having the structure N double bond O. Here it will be a coordinate bond, and here it will be having OH bond. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड. इसमें ये ध्यान रखना है आपने, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, तो कुछ केसेस में यहाँ पे हम प्लस का साइन और यहाँ पे माइनस का साइन भी दिखा देते हैं कुछ केसेस के अंदर. जब ये H लॉस कर देगा तो इट विल बी फॉर्मिंग द नाइट्रेट आयन. इन दैट केस देयर विल बी सेम स्ट्रक्चर, नो चेंज इन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल और आयन. So this is about the nitric acid. Next compound which we have to discuss in the nitrogen family, that is your dinitrogen gas. Next is your dinitrogen gas, that is N2. First we will be discussing the laboratory preparation. In laboratory, your dinitrogen is prepared by decomposition of ammonium nitrite. This is the compound जिसको अगर हम हीट करें then we will be getting N2 plus 2H2. But this ammonium nitrite is not a much stable compound. So what is being done is, instead of heating this, we heat a mixture of equimolar mixture of ammonium chloride and sodium nitrite. इसके इक्विमोलर मिक्सचर को हीट करेंगे, एक एक मोल लेंगे, हीट करेंगे. बेसिकली जब हीट करेंगे पहले ये बनेगा और इसके बाद ये टूटेगा, ये बन जाएगा. तो N2 प्लस 2H2O और एक्स्ट्रा क्या बनेगा इस केस में, सिर्फ NaCl. इन दोनों के बीच में पहले एक रिएक्शन होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह लीजिए आप. NaCl बन जाएगा और अमोनियम नाइट्राइट बन जाएगा. देन अमोनियम नाइट्राइट विल डिकम्पोज टू गिव यू द डाइनाइट्रोजन गैस. इस प्रिपरेशन के दौरान ये ध्यान रखना है, इस मेथड से स्मॉल अमाउंट ऑफ HNO3 इज ऑल्सो फॉर्म्ड. थोड़ी सी मात्रा में आपका HNO3 भी बनेगा अगर हम ये रिएक्शन करेंगे. अगर इस इम्प्योरिटी को हम रिमूव करना चाहते हैं HNO3 की, then what we have to do is we have to pass this dinitrogen gas through aqueous solution of sulfuric acid containing very small amount of potassium dichromate. मतलब इस गैस को, जो नाइट्रोजन गैस निकल रही है उसमें इसके HNO3 की अगर इम्प्योरिटीज़ है, वेपर्स की इम्प्योरिटीज़ है, तो इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड और पोटाशियम डाइक्रोमेट के सोल्यूशन में से पास कर देंगे, तो ये आपका रिमूव हो जाएगी इम्प्योरिटी. The second method of preparing dinitrogen is, you can prepare by action of your HNO2, that is nitrous acid, on urea. यूरिया होता है आपका NH2 CONH2 प्लस HNO2, that is the nitrous acid. ये ध्यान रखना है कि ये नाइट्रस एसिड जो है वो अनस्टेबल होता है, तो इसको हम जो है लेबोरेटरी में इमीडिएटली साथ ही बनाते हैं जब हमने नाइट्रोजन बनानी होगी. एंड यू विल बी गेटिंग इन दिस केस डाइनाइट्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. यू कैन बैलेंस दिस इक्वेशन. अगर 2HNO2 लगाएं हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 4 हैं तो एक 5 से तो वाटर बनेगा नहीं. होल नंबर में तो 3 वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे यहाँ पे अगर 2 लगा देंगे तो. ठीक है, आपकी कार्बन 1 है तो CO2 बन गई. नाइट्रोजन आपकी 1 2 और 2 4 तो 2N2 बन जाएगी. एंड ऑक्सीजन इज योर 5, सो 2 और 3 5. सो दिस इक्वेशन इज योर बैलेंस्ड. आप इस तरीके से बना सकते हैं. दिस इज द सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग डाइनाइट्रोजन बाय एक्शन ऑफ योर HNO2 on urea. The third method of preparing dinitrogen is that you can allow urea to react with sodium oxychloride NH2 CONH2, allow it to react with sodium oxychloride NaOCl, which is a salt of hypochlorous acid. इसमें जब हम रिएक्शन कराएंगे
आपकी डाई नाइट्रोजन बनेगी N2, साथ में आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, साथ में वाटर और साथ में NaCl। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस NaCl। आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम ऑन बैलेंसिंग दिस इक्वेशन, यू कैन बैलेंस इट। ट्राई कर लेना, एक एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी, यू कैन बैलेंस दिस। अगर हमें प्योर डाई नाइट्रोजन बनानी हो, if we wish to prepare pure dinitrogen, then pure dinitrogen is obtained by thermal decomposition of nitrides। जैसे हमारे पास बेरियम नाइट्राइड हो, BaNN3 होल ट्वाइस, बेरियम नाइट्राइड। नाइट्राइड आयन पे -1 चार्ज होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज बेरियम नाइट्राइड। इस रिएक्शन को कुछ नहीं करना आपने, इस कंपाउंड को सिंपली हीट करना है। जब आप इसको हीट करेंगे तो हीट करने पे इट विल डिकम्पोज टू गिव यू बेरियम मेटल प्लस 3 नाइट्रोजन। सिर्फ हीट करने पे यू विल गेट द प्योर डाई नाइट्रोजन गैस। इसी तरीके से अगर आप सोडियम नाइट्राइड को हीट करेंगे 2NaN3, इसको अगर हम हीट करें देन यू विल गेट 2Na प्लस 3N2। सो दिस इज द मेथड टू प्रिपेयर प्योर डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन को हम एक और तरीके से ही बना सकते हैं, बाई पासिंग अमोनिया। अमोनिया गैस को पास करो आप हीटेड क्यूप्रिक ऑक्साइड पे। किस में से पास करना है? हीटेड क्यूप्रिक ऑक्साइड के ऊपर से पास करना है आपने इसको, इन प्रेजेंस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर की प्रेजेंस में जब आप इसको हीट करके पास करेंगे, इस अमोनिया को इसके ऊपर से पास करेंगे, यू विल गेट कॉपर प्लस डाई नाइट्रोजन प्लस वाटर। तो इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करना चाहें तो 2 3 3 6 your 6 hydrogen means 3 waters. So this will be the reaction. अगर हमें डाई नाइट्रोजन बनानी है ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, अब मैं बात कर रहा हूं मैन्युफैक्चर ऑफ डाई नाइट्रोजन की, तो मैन्युफैक्चर ऑफ डाई नाइट्रोजन में हम क्या करते हैं? इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाने के लिए वी लिक्विफाई आवर एयर को लिक्विफाई करेंगे हम, आइदर यूजिंग आपका क्लाउड्स मेथड और वी विल बी यूजिंग लिंडेज मेथड फॉर लिक्विफाइंग द एयर को लिक्विफाई करने के बाद वी विल सब्जेक्ट दैट एयर फॉर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब हम लिक्विड एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे देन योर डाई नाइट्रोजन, आपको पता ही है एयर के अंदर मैक्सिमम मेजर कंपोनेंट होते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो जो डाई नाइट्रोजन है दैट इज हैविंग ए वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू दैट इज ऑक्सीजन, 77.2 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट है। सो योर डाई नाइट्रोजन बीइंग हैविंग लोअर बॉइलिंग पॉइंट विल डिस्टिल ऑफ, ये बाहर आ जाएगा, आप इसको कलेक्ट कर लेंगे, लीविंग बिहाइंड द ऑक्सीजन एंड अदर ट्रेस अमाउंट ऑफ गैसेज विच आर लेफ्ट। सो दिस इज अबाउट the preparation of dinitrogen. Now we should discuss about the properties of dinitrogen. So first thing that we are going to discuss is physical properties. Physical properties of dinitrogen. पहली प्रॉपर्टी आप एयर रोज ही देखते हैं, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेज। ये जो नाइट्रोजन है कलरलेस, ऑर्डरलेस गैस, ये आपकी कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस है, ना तो इसका कोई कलर है ना इसकी कोई स्मेल है। दूसरा, ये जो आपकी डाई नाइट्रोजन है इट इज हैविंग द बॉइलिंग पॉइंट, अभी लिखा मैंने 77.2 केल्विन। थर्ड वन इज
डाई नाइट्रोजन इज ए बिट लाइटर देन एयर, लाइटर देन एयर, हल्की सी एयर से लाइट है ये, क्योंकि इसकी अगर आप वेपर डेंसिटी निकालेंगे 14 आएगी, जो एयर की वेपर डेंसिटी होती है दैट इज स्लाइटली मोर देन 14। नॉन टॉक्सिक है, लेकिन जो एनिमल्स हैं दे कैन डाई इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में एनिमल्स की डेथ हो सकती है। उसका कारण ये नहीं है कि ये पॉइजनस है, उसका कारण ये है कि नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में अगर कोई व्यक्ति है तो ही विल डाई ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलेगी जिसकी वजह से वो एक्सपायर कर जाएगा। वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन एयर वाटर, पानी में बहुत ही कम घुलती है, 33.2 ml पर लीटर। सोल्यूबिलिटी कितनी है इसकी? 33.2 ml पर लीटर ऑफ वाटर। दिस इज द सोल्यूबिलिटी ऑफ योर डाइनाइट्रोजन गैस इन वाटर। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 63.2 केल्विन, मेल्टिंग पॉइंट इज 63.2 केल्विन। सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे आए तो डाइनाइट्रोजन इज इनर्ट। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो डाइनाइट्रोजन डू नॉट रिएक्ट मच, डू नॉट react much. Why it does not react much? The reason for that is in dinitrogen there is a very strong, exceptionally strong nitrogen triple bond having bond dissociation enthalpy of roughly 941 kilojoules per mole. This enthalpy of dissociation ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मेक इट ऑलमोस्ट इनर्ट, हर चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करता ये, फिर भी इट रिएक्ट टू सम एक्सटेंट विद अदर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। सो पहली चीज तो ये होगी। दूसरी ये होगी इट इज नाइदर कंबस्टिबल नॉर ए स्पोर्टर ऑफ कंबस्चन, नॉर ए स्पॉटर ऑफ कंबस्चन। ना तो ये खुद जलता है ना जलने में सहायता करता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, ऑल्दो इट इज नॉट कंबस्टिबल एंड नॉट ए स्पॉटर ऑफ कंबस्चन, लेकिन कुछ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स जो होती हैं, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम, अगर हम एक मैग्नीशियम का रिबन लें और उसको जला दें, वो इग्नाइट इट, और उसके बाद उस रिबन को नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में लेके जाएं, प्योर नाइट्रोजन के अंदर भी लेके जाएं, तो मैग्नीशियम का रिबन कभी भी क्या नहीं होगा, बुझेगा नहीं, इट विल कीप ऑन बर्निंग, जलता रहेगा ये। रीजन बीइंग कि हाई टेम्परेचर पे मैग्नीशियम विल कंबाइन विद डाइनाइट्रोजन टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्राइड MgN3 whole twice. Sorry, magnesium nitride नहीं, it will be forming Mg3N2. Mg3N2 will be formed. So ये जलता रहेगा, आपका मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा इसके अंदर और ये जलते रहेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन हम रिएक्शन विद मेटल्स करेंगे। तो रिएक्शन विद मेटल्स के अंदर आपका जो है जितने मेटल्स हैं विच आर समवट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, साइज छोटा है जिनका, जैसे लिथियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, दे ऑल विल बी रिएक्टिंग विद नाइट्रोजन ऑन हीटिंग टू गिव देयर नाइट्राइड्स। जैसे आपका एल्युमिनियम विल रिएक्ट विद डाइनाइट्रोजन, इट विल फॉर्म एल्युमिनियम नाइट्राइड। इसी तरीके से लिथियम विल फॉर्म लिथियम नाइट्राइड। और ये जितने भी नाइट्राइड्स हैं
इनकी एक विशेषता है, किसी भी मेटल का नाइट्राइड हो, इफ़ इट इज़ सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस, अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे देन इट विल बी डेफिनेटली गिविंग यू अमोनिया। ये सब के सब आपको अमोनिया देते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको, जैसे एल्युमिनियम नाइट्राइड है, you allow it to react with water, that is hydrolyze it, you will get aluminum hydroxide plus NH3, you will be getting ammonia gas evolved with this। हम अमोनिया की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में शायद इसको पढ़ के भी आए हैं पहले रिएक्शन को। सो दिस इज द रिएक्शन विद सर्टेन मेटल्स। अगर हम इससे आगे चलें तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन, आप पढ़ के आए हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, रिएक्शन विद हाइड्रोजन gas, that is H2 gas. You have already read this process, N2 gas plus 3H2 gas to give you 2NH3 gas, of course in presence of iron as catalyst, molybdenum at promoter, low temperature and high pressure। लो टेम्परेचर का मतलब है इसमें टेम्परेचर उतना रखना है जिस पे ये रिएक्शन एक ऑप्टिमम स्पीड पे चलती रहे। तो 770 केल्विन टेम्परेचर होता है जनरली यहाँ पे, एंड दिस प्रेशर इज़ हाई, रफली 200 एटमॉस्फेयर के आसपास हम प्रेशर यूज़ करते हैं इसके अंदर फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। एक मैंने आपको रिएक्शन विद ऑक्सीजन में ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कराए थे। तो नाइट्रोजन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ हीट करें, रिएक्शन विद यू कैन से ऑक्सीजन, तो वी गेट NO gas, 2NO। There I told you that NO gas is called a laughing gas, and that NO2 being not much stable immediately combine with the more of oxygen to give you NO2। तो अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करें, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो आपकी पहले N2 प्लस O2, इसको हीट करेंगे स्ट्रांगली इस मिक्सचर को, तो 2NO बनेगा। This is unstable, so this 2NO plus O2 will combine to give you 2NO2, which will be a reddish brown gas। So this is the reaction with nitrogen। Now let us discuss a few important reaction with compounds। Reaction with compounds, nitrogen react with certain compounds to form very important other compounds। For example, reaction with your calcium carbide, CaC2 plus N2, this is calcium carbide, this compound is called calcium carbide। जब इनको दोनों को हीट करेंगे इस मिक्सचर को, you will get CaCN2 plus carbon। This compound is called calcium cyanamide। What it is called? Calcium cyanamide। लेकिन ये जो मिक्सचर एज ए होल है, दिस इज योर कैल्शियम साइनामाइड, और ये जो मिक्सचर है, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड नाइट्रोलियम। इसको हम मिक्सचर को नाइट्रोलियम बोलते हैं, एंड इट इज़ ए वेरी गुड फर्टिलाइजर। बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स हैं। अगर हम इसको एल्मुना के साथ हीट करें, Al2O3, वी हीट इट विद एल्मुना, डाइनाइट्रोजन गैस, if we heat it with alumina at a temperature of approximately 1275 kelvins, you will get aluminum nitride plus you will be getting the carbon monoxide। इसमें कार्बन साथ में लेनी पड़ेगी, एल्युमिनियम नाइट्रोटाइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। आप कार्बन को रिएक्टेंट में भी दिखा सकते हैं, यहाँ भी दिखा सकते हैं, पर क्योंकि हम इसको प्रोडक्ट में दिखा रहे हैं तो लेट मी शो इट इन द रिएक्टेंट्स। इसको रिएक्टेंट में ही दिखा देते हैं, Al2O3 प्लस N2 प्लस C। इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन ये रिएक्शन होती है, तो एल्युमिनियम नाइट्राइड बनेगा और साथ में आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगी, 3 कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे 3 कार्बन लगेंगे आपके। So in this way you can get
एल्युमिनियम नाइट्राइड फ्रॉम दिस हेयर। इसकी इतनी ही रिएक्शंस हमने करनी है यहाँ पे। उसके बाद यूजेस ऑफ डाई नाइट्रोजन है, तो एक तो ये इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के काम आता है स्टील इंडस्ट्री के अंदर। ये आपकी बल्ब के अंदर, आजकल तो हम बल्ब यूज़ नहीं करते, जब टंगस्टन फिलामेंट के बल्ब आते थे तो उसके अंदर जो है फिलामेंट बर्न ना करे इसलिए नाइट्रोजन फिल करते थे टू गिव इट इन द इनर्ट एटमॉस्फेयर। डाई नाइट्रोजन इज आल्सो यूज्ड फॉर योर मैन्युफैक्चर ऑफ कंपाउंड्स लाइक अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम साइनामाइड। लिक्विड नाइट्रोजन जो है दैट इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। कुछ बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। फूड स्टफ को भी यूज़ करते हैं। एक सर्जरी होती है जिसको बोलते हैं क्रायो सर्जरी, जिसको आम बोलचाल की भाषा में लोग ठंडी गैस बोलते हैं, तो वो इसी से करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर डाइल्यूटिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। एंड अदर रिएक्टेंट्स, जब हमें किसी रिएक्शन की वायलेंट नेचर को कम करना हो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है बहुत सारी, जिनको अगर हम सीधा रिएक्ट करवा दें तो वो बहुत ज़्यादा वायलेंट होती है, विस्फोट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम करने के लिए, बिकॉज नाइट्रोजन इज़ ए इनर्ट गैस, तो उसकी डाइल्यूशन कर देते हैं हम बाई एडिंग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के अंदर ऐड कर देते हैं। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ योर डाई नाइट्रोजन। आई थिंक वी शुड स्टॉप ओवर हेयर। हमारे 2 कंपाउंड और रह गए हैं इसमें, that we will be discussing in our next lectures. Here I have just remembered that mistakenly I have spoken, I think, barium azide as barium nitride. मैंने मैन्युफैक्चर और प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन में बेरियम एजाइड लिखा है, और उसको शायद ड्यूरिंग द स्पीकिंग ऑफ द नेम ऑफ दैट कंपाउंड आई हैव spoken its name as barium nitride, but it is not barium nitride, it is your barium azide, जो आपका N3 माइनस आयन होता है, इसको एजाइड आयन कहते हैं। सो दीज विल बी कॉल्ड एजाइड्स। तो वहाँ पे आई एम ऑलमोस्ट श्योर दैट आई हैव स्पोकन इट रॉन्गली ओवर देयर, तो करेक्ट कर लीजिए आप इसको वहाँ पे, सो दैट no misconception goes in your brains. Thank you very much.